السلام علیکم 44 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. میلسی تھانہ مترو کی حدود دو کوٹہ میں تیزاب گردی کا واقعہ. محمد پرویز عرف حمزہ نامی شخص نے خاتون کے ساتھ زیادتی کی، بعد میں جسم کے نیچے کے حصے پر تیزاب پھینک دیا. سرپرست اعلیٰ شاہین یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن یوسی چراہاں محترم جناب راجہ واجد نواز صاحب کی طرف سے اہلیان لوئر گل کے مستحق افراد کے لیے 66 بیگ آٹا اور پل کی تعمیر کے لیے 50,000 روپے کیش ادا کیے. گزشتہ 24 گھنٹے میں خضدار لیویز فورس نے مختلف کارروائیوں میں منشیات، سمگلرز، ڈکیت، اغوا کے کیس میں مطلوب اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیے. اسسٹنٹ کمشنر خضدار کا لیویز تھانہ باغبانہ میں میڈیا سے گفتگو. ننکانہ صاحب میں جمعۃ الوداع اور عید الفطر کے حوالے سے ضلعی امن کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد. کلور کوٹ جنڈاوالا کے نواحی علاقہ چک نمبر 55 DB جنگل میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. ریسکیو 1112 ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں. امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں. بورے والا میں وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کی طرف سے ٹرینیں چلانے کا اعلان. بورے والا کے شہریوں کے لیے بے سود ثابت ہوا. اس ٹریک پر چلنے والی واحد ٹرین فرید ایکسپریس اس شیڈیول میں شامل نہیں، جس میں ملک بھر سے 15 ٹرینیں چلائی گئی ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ننکانہ صاحب میں سکھ کمیونٹی کے 100 مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا. کرونا وائرس کے پیش نظر محکمہ بیت المال کی جانب سے غریب لوگوں میں راشن تقسیم کرنے کے لیے صوبائی وزیر اقلیتی امور اور انسانی حقوق اعجاز عالم اوگسٹن کی سانگلہ ہل آمد. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آتے ہیں تفصیلات کی طرف. میلسی سے رانا محمد اصغر کی رپورٹ کے مطابق متاثرہ خاتون شہناز بی بی نے بتایا کہ میں بھیک مانگ کر گزارا کرتی ہوں. میرے 4 بچے ہیں. محمد پرویز عرف حمزہ نامی شخص عرصہ 5 سال سے مجھے تنگ کر رہا تھا کہ مجھ سے دوستی کر لو یا شادی کر لو. میں معمول کے مطابق گھر سے بھیک مانگنے کے لیے جا رہی تھی کہ اچانک پرویز عرف حمزہ سکنا کوٹ ملک آ گیا اور مجھے کہا کہ میرے ساتھ میرے موٹر سائیکل ریڑے پر بیٹھ جاؤ، فصلوں تک جانا ہے. وہاں لے جا کر میرے ساتھ زبردستی زنا حرام کاری کرنے لگا. میرے شور کرنے پر میرے جسم کے نچلے حصے پر تیزاب پھینک دیا. متاثرہ خاتون کو ابتدائی طبی امداد کے بعد برن یونٹ نشتر اسپتال ملتان منتقل کر دیا. تھانہ مترو پولیس نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے جرم ثابت ہونے پر مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا اور حوالات میں بند کر دیا گیا. نیو مری سے ظفر سعید ستی کی رپورٹ کے مطابق لوئر گل کی طرف سے دی گئی افطار پارٹی میں معززین علاقہ اور ینگ فیڈریشن کے نوجوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. انشاءاللہ واجد نواز صاحب نے یقین دلایا کہ لوئر گل کے درینہ مسائل اور پل کی تعمیر کے لیے ہر مشکل گھڑی میں مزید معاونت کی جائے گی. خضدار سے محمد رضوان کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر خضدار عبد المجید سربراہ نے لیویز تھانہ باغبانہ میں لیویز فورس خضدار کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی کارروائیوں کے بارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی کمشنر خضدار طفیل بلوچ کے احکامات کی روشنی میں باغبانہ ایریا میں نائب تحصیلدار حبیب گجکی کی سربراہی میں لیویز زوا انچارج عبد المالک رند نے دوران چیکنگ ایک مزدے سے 207 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس، 55 کلو افیون برآمد کر کے 2 ملزمان جاوید احمد ولد عبد المنان، وحید احمد ولد لال محمد کو گرفتار کر کے منشیات اور گاڑی قبضے میں لے لی. ایک اور کارروائی میں لیویز انچارج باغبانہ حفیظ اللہ شاہد اسلم تفتیشی دفعہ عبداللہ نے دوران چیکنگ گریڈ اسٹیشن کے قریب سے 2D کار سے 2 کلو گرام چرس برآمد کر لی.
ननकाना साहब से मलिक जाफर की रिपोर्ट के मुताबिक जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के हवाले से ज़िलाई अमन कमेटी के इजलास का इनेकाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद उस्मान खालिद ने इजलास की सदारत की। इजलास में MPA मियाँ मोहम्मद आतिफ, DPO इस्माइल रहमान खाड़क समेत तमाम मज़ाहिब व मसालिक के नुमाइंदों की शिरकत। इजलास में अमन कमेटी के मेंबरान की जानिब से हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की यकीन दहानी करवाई गई। ईद उल फितर के इज्तिमात खुली जगहों पर किए जाएंगे। उस्मान खालिद ने कहा कि SOPs के पेश नज़र शहरी ईद के मौके पर गले मिलने से परहेज़ करें। ADCR का कहना था कि हिफाजती मास्क, दस्तानों और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी करें। भक्कर से जुबैर अली की रिपोर्ट के मुताबिक जंडावाला अली खैल के नवाही इलाका चक नंबर 55 DB जंगल में अचानक आग भड़क उठी। 8 से 10 एकड़ जंगल में दरख्त वगैरह जलकर राख हो गए। रेस्क्यू 1122 नौजवान राना जफर इकबाल, गुलबाज मोहम्मद खालिद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और इलाके को बड़े नुकसान से बचाया और अहले इलाका का रेस्क्यू 1122 अमला और फायर ब्रिगेड की टीम को खैराज तहसीन पेश किया। बूरेवाला में वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की तरफ से ट्रेनें चलाने का ऐलान बूरेवाला के शहरियों के लिए बेसूद साबित हुआ, क्योंकि इस ट्रैक पर चलने वाली वाहिद ट्रेन फरीद एक्सप्रेस इस शेड्यूल में शामिल नहीं, जिसमें मुल्क भर से 15 ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसकी वजह से लाहौर से कराची जाने वाली वाहिद ट्रेन फरीद एक्सप्रेस ना चल सकी। स्टेशन मास्टर जाहिद महमूद खान का कहना था कि जो ट्रेनें इब्तदाई शेड्यूल में शामिल हैं उन ट्रेनों को चलाने की इजाज़त है। उनका मज़ीद कहना था कि मुसाफिर सफ़र करने से पहले इस बात का यकीन कर लें कि जिस ट्रेन के ज़रिए सफ़र करना है उसका रूट क्या है। फरीद एक्सप्रेस इस ट्रैक पर चलने वाली वाहिद ट्रेन है। लाहौर से कराची के इस ट्रैक पर फरीद एक्सप्रेस के अलावा कोई और ट्रेन नहीं चलती। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स की हटदर्मी की वजह से शहरी सफ़र की सहूलत से महरूम हैं। अब हमारे रूट की वाहिद ट्रेन भी नहीं चलाई जा रही, जिसकी वजह से सफ़र की ये सहूलत भी ख़त्म हो गई है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बूरेवाला में फरीद एक्सप्रेस चलाने का जल्द हुक्मनामा जारी किया जाए ताकि इसके इलाके के शहरी भी इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर सकें। ननकाना साहब से मलिक जाफर की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन के मरकज़ी सीनियर नायब सदर सैयद एहसानुल्लाह वक्कास ने सिटी सदर अल खिदमत फाउंडेशन उमर फारूक मलिक और दीगर ओहदेदारान के हमरा गुरुद्वारा जन्म स्थान में सिख बरादरी के 100 मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। सिख बरादरी में राशन तकसीम करने का मकसद उन्हें ये एहसास दिलाना था कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ समाजी इदारे और पूरी पाकिस्तानी कौम भी उनके साथ है। सिख बरादरी ने इस मुश्किल वक्त में राशन की फराहमी पर हुकूमत पाकिस्तान और अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया और ऐसे मुल्क में मजहबी रवादारी की बेहतरीन मिसाल करार दिया। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली, अमन व अमान, बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी के फ़रोग और मुल्क से कोरोना वायरस के बाद जल्द खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की गई। अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से इससे कबल मसीही बरादरी के 50 और मुस्लिम कम्यूनिटी के 500 मुस्तहिक अफराद में भी राशन तकसीम किया जा चुका है, जबकि मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में अब तक 1 अरब से ज़ायद मालियत का राशन मुस्तहकीन में तकसीम किया जा चुका है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया है। बूरेवाला से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इकबाल अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी फारूक अहमद डोगर का AC बूरेवाला, राना औरंगजेब और महकमा फूड के अफसरान के हमरा गंदम का टारगेट पूरा करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अपनी टीम के हमरा गल्ला मंडी बूरेवाला समेत दीगर मकामात का भी दौरा किया और गंदम थ्रेशर पॉइंट्स पर किसानों से मुलाकात भी की और उन्हें बारदाना भी फराहम किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि गंदम का बारदाने का टारगेट पूरा करने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। किसानों को उनकी दहलीज पर बारदाना की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। किसानों से गंदम का आखिरी दाना तक खरीदेंगे। गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। ननकाना से मलिक जाफर की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के पेश नज़र गरीब लोगों में राशन तकसीम करने के लिए सूबाई वजीर अक़लियती उमूर और इंसानी हुकूक एजाज़ आलम ऑगस्टन की गवर्नमेंट हाई स्कूल सांगला हिल आमद। सूबाई वजीर ने गरीब लोगों में राशन बैग्स तकसीम किए। इस मौके पर सूबाई वजीर अक़लियती उमूर और इंसानी हुकूक एजाज़ आलम ऑगस्टन ने कहा कि हुकूमत ज़ात पात, मजहब और रंगो नस्ल से बालातर होकर तमाम साकीन वतन के लिए खिदमात सर अंजाम दे रही है। कोरोना वायरस मुसलसल बढ़ रहा है, हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर और इंसानी हुकूक एजाज़ आलम ऑगस्टन ने गरीब लोगों में आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशियाए खुरोनोश तकसीम किए।
माछीवाल के नवाही गांव में मुर्तज़ा नामी शख्स जो घर से कामकाज के लिए गया मगर कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी घर ना आया। लापता मुर्तज़ा के घर वालों ने कोई जगह ना छोड़ी मगर कोई पता ना चल सका। बूढ़ी माँ रो रो कर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। पुलिस का कार्रवाई से इनकार। माँ ने आला हुकाम से अपील की है कि मेरे साथ ताउन किया जाए। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल भट्टी से। जी ज़फ़र इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ माछीवाल का नवाही गांव 553 ईबी है। तो यहाँ पर मुर्तज़ा नाम का लड़का अपने घर से निकला है, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद वो वापस नहीं आया। घर वाले काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि हमारा बेटा काम के सिलसिले में घर से निकला है, लेकिन इतने दिन गुजर गए, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर अपने बेटे को तलाश ना किया गया हो, लेकिन हमारा बेटा वापस नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम जी, ਅਸੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, अगर तुम मदद कर सकते थोड़ी मेहरबानी है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हम पुलिस स्टेशन गए लेकिन उन्होंने भी हमारी कोई दादरसी नहीं की। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। हम आला काम और इंसानी हकूक़ के इदारों से अपील करते हैं कि हमारे बच्चे को तलाश करने में हमारी मदद की जाए, ताकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर आए तो हमें सुकून मैसर होगा। जी बहुत शुक्रिया ज़फ़र इकबाल, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 44 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।